Hey everyone, my name is Manya, and today I had the pleasure of hosting Dr. Anshul Jay Bharti, who is a dietitian, a renowned nutritionist, a health coach, and has over 15k happy clients. So, we had a nutritionist in the show herself for our first podcast in the series of interviews by CDF CVS. एंड आज हमने जाना कि कौन सी डाइट्स हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, कौन सी डाइट्स हमें फॉलो करनी चाहिए जो बजटेबल भी हो एंड ईजिली अवेलेबल भी। साथ ही हमें कॉस्ट की बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रूटीन्स शुड यंगस्टर्स फॉलो, एंड आप लोगों के लिए भी जो एडल्ट्स इस पॉडकास्ट को वॉच कर रहे हैं इन वीडियो फॉर्मेट, and some taboos and myths related to all the trendy diets like keto, vegan, and whatnot. So, pura podcast video dekhna and gain insights into your life of fitness this 2025. Okay. Hello everyone, and welcome to the series of CDF known as Buland. And today with us we have Dr. Anshul Jay Bharti. She is a nutritionist and lifestyle coach, and she will be going to talk about health and nutrition in this podcast. So, hello, ma'am, I welcome you to the podcast. And how are you Thank today? you so much. Thank you so much, Manya. I am excited to be here, and it's always a pleasure to talk to the young audience like you. And yeah, I'm excited and happy to be here. Okay, ma'am. So, ma'am, first of all, I want to know about you. How did you decide to become a nutritionist, a lifestyle coach, a health beneficiary? Like, how did you decided to pursue your career in this field? Okay, so this is connected to my own journey. There has been some tough times when it comes to my health, right from the age of, when we get into puberty, is where I got PCOS, I got very serious jaundice, and So, ma'am, I would like to know about your journey. How did you decided to be a nutritionist in the first place? so this all basically started with my own journey where I was detected with PCOS at a very young age. It started like 13, 14. And उस time पे awareness उतना नहीं था about this condition. And coupled up with a very serious case of jaundice, after which I gained a lot of weight. जिससे मेरा confidence effect हुआ. I was nearly 100 kilos. And then, I started working on myself. I started working on my body, my health, tried boiled food also for a week. But then this was all for me being like a guinea pig and trying different things, jotting down the reaction, like writing a food diary and a fitness diary, analyzing what works for the body, how our different approaches work, my research on different kind of diet patterns, what doctors are researching on. So I started studying it. Although I did take admission in Delhi University by then, under biology, like zoology as a subject, Bachelor of Science. And then post graduation, then I decided that no, I really would want to help uh, females, young girls who go through the same phase, but they have everyone telling them that lose weight and take care of your health, but nobody tells them how. People tell them, okay, workout daily करना चाहिए आपको, diet का ध्यान रखना चाहिए, you should lose weight because you have different phases of life ahead, but then nobody tells you exactly how to do it. And nobody is your guiding force there, nobody is the helping hand. Yeah, maybe they'll tell you khana kam kar do, roti kam kar do, chawal kam kar do, but that's not the solution, that's not how it works. So I wanted to help people, I wanted to be their guide, their helping hand, who is not scolding them, who is not judging them, but is giving them solutions which are sustainable also. I have sustained it, be it workplace, be it marriage, be it child birth, I have sustained it. So I was very sure about it once I cleared my college. And so then I opted for post graduation in nutrition and dietetics. And I carried it forward and I started my work journey. That's how it all started. And
I landed up doing it and then as a profession. It's very inspiring the way you lost the weight, then you went into research, then did all of Yes. it to help people. So it's very inspiring. So I had a question because I've seen that in my college there are many girls who are taunted for their weight because they weigh so much or they look so heavy, or we can say like they're fat, and boys usually tell them that तू मोटी है, तुझे पतला हो जाना चाहिए. And these girls are very comfortable with their body, whatever body type they have. So जो weight loss journey होती है, it should come from within yourself, or is it that आपको fit रहने के लिए पतला ही होना चाहिए, or if you're comfortable with your weight, so should we lose weight? Okay. So first thing is that जो external society बोलेगी, that comes way after. Although yes, if it is happening on daily basis, you have to tackle it some other way. Not that by listening to them you decide whether you're overweight or not. You know, nobody else can tell you what your body if is telling you about your weight and you being comfortable in your body, that's body shaming. And there will always be somebody from the society telling you something negative about your body, be it color, be it hair, be it eyes, be it your body shape, be it some or the other thing, right? चाहे वो पतला है वो पतले के लिए सुनता है वो हैवी के लिए सुनता है, कलर फेयर नहीं है उसके लिए सुनते हैं. सो दैट इज सोसाइटल नॉर्म्स, दैट इज द वीकनेस ऑफ द सोसाइटी. यू डोंट हैव टू बी दैट वीक मेंटली इनसाइड यू. सो सबसे पहला फ्रेमवर्क आता है आपको मेंटली स्ट्रांग होना है एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द राइट थिंग्स. पहले आपको ये देखना है वेदर यू आर देयर. सी हेल्थ वाइज देयर इज ऑलवेज स्कोप. पूरी लाइफ आपको अपनी बॉडी पे काम करना है. ओके, हेल्थ का मतलब है एवरीडे बेसिस यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स. देयर इज नो परफेक्शन देयर, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस ऑलवेज. सो फर्स्ट यू शुड नो what are the areas that you need to work on. Okay, so you have different parameters. आप वेस्ट हिप रेशियो से चेक कर सकते हो, आप हाइट एंड बॉडी वेट कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी एक्सपर्ट से या कोई भी राइट एप्लीकेशन से आप ये टेस्ट कर सकते हो. या फिर आपको और ज्यादा इन डेप्थ जाना है तो आप एक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करा सकते हो जहां पे आपको फैट मसल वाटर सब पता चल जाएगा. एंड सबसे जरूरी एवरी ईयर बेसिस प्लीज गेट योर ब्लड टेस्ट डन एंड लुक एट इंटरनल हेल्थ कि मुझे कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है. ओके, अगर इफ यू हैव गेन्ड वेट इन द लास्ट 5 years एंड यू फील हैवीनेस, यू फील कि ये मेरा कंफर्टेबल वेट नहीं है एंड आई वुड बी फीलिंग मच बेटर लाइटर हेल्दियर इफ आई विल बी 3 to 4 kilos लाइटर, देन वर्क टूवर्ड्स इट. तो रीसेंट वेट गेन जो 2 3 4 5 साल में होता है, ऑब्वियसली व्हेन समवन फ्रॉम स्कूल जॉइंस कॉलेज, ये बहुत नॉर्मल है बहुत सारे लोगों के साथ. कि वो वेट गेन करते हैं, टिफिन कैरी नहीं करते. इट इज वेरी नॉर्मल फॉर मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए टू गेन वेट. ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट सी व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, आपका स्कोप है लूज करने का या नहीं. सेकेंडली, बिकॉज इट्स अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, यू आर एंटरिंग इनटू कॉलेज एंड देन जॉब्स होंगी, तो एक रूटीन चेंज होता है. पहले तो स्कूल लाइफ बहुत स्टैटिक होती है, मॉम्स आर डूइंग एवरीथिंग, यू हैव अ रूटीन व्हिच इज सेट बाय द स्कूल. जब हम आगे जाते हैं कॉलेज एंड वर्क, द रूटीन बिकम्स मच मोर मेसी केओटिक. एकदम से कोई प्रोजेक्ट, एकदम से ये इंक्लूजन्स यहाँ ज्वाइन कर लिए हमने, अब हम ये करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे. सो उसमें अपनी बॉडी क्लॉक सेट करना टू सेट द रूटीन, this is a habit that one should start the base with. So if you are overweight or not, या weight loss का क्या मतलब है, हेल्थ का मतलब हमें समझना है. और हेल्थ का मतलब आपका फिजिकल हेल्थ भी है. आर यू हैप्पी विद द कंफर्ट दैट योर बॉडी इज गिविंग इन. ओके, एनर्जी लेवल्स आपके ठीक हैं, आपके आई बैग्स तो नहीं आ गए हैं, स्लीप ठीक है कि नहीं, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओके, फिजिकल हेल्थ, ये सब इसमें आते हैं. तो आपको हेल्थ को ऐसे देखना है, नॉट जस्ट वेट. सो बेसिक पॉइंटर्स कि ईयरली ब्लड प्रोफाइल जो पूरा एक चेकअप जरूरी है. फैमिली को भी एंकरेज करो, ये इंडिया में बहुत कम है. दिस इज लैकिंग अ लॉट. लोग कराते ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ फील नहीं होना शुरू हो जाता है.
80% Indians after COVID are deficient in vitamin D and B12, kids included. अब उसकी डेफिशिएंसी से आपको लो भी लगेगा, आपका वेट भी कम नहीं होगा, मेटाबॉलिकली आपको स्लो डाउन लगेगा. So it's very important to know what's happening inside your body. What is your body trying to tell you? And we have science there to help you know that. Okay. So सबसे पहले blood profile पूरा जरूरी. Then manage a routine. एक routine set करो अपने लिए. With giving you leverages possible है, बहुत strict नहीं होता है कुछ भी, but system होना चाहिए. हर चीज का अगर आप system करोगे, things will fall into place. Yeah. ओके सो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था बिकॉज मैंने कई बार अपने लाइक फ्रेंड्स को देखा, अपनी फैमिली में मेरी मम्मी भी बोलती हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास वेन एवर आई गो एंड टेल हर दैट दीज आर माई प्रॉब्लम्स एंड ये मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, शी टेल्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट एंड टू हैव, एंड देन मुझे समझ नहीं आता दैट हाउ विल आई टेक दीज 1 1 आवर ब्रेक्स, एंड देन मैं इतनी चीज़ें कैसे खाऊं, कौन देगा मुझे, सो इट बिकम्स अ हेक्टिक. तो लाइक Okay. they are like scared to go to a nutritionist or consult to them. Yeah. क्या करना चाहिए? Yeah. नहीं, तो इसमें आपको see the internet, the world is filled with professionals, okay? और कोई हमारी कंट्री में कोई एसओपी नहीं है हमारे प्रोफेशन को लेके कि everybody will practice the same or the right way. So when you're consulting someone, always find out whether the plan will be made as per you or whether this plan is like a generic plan जो कि उन्होंने बनाया हुआ है और वही वो आप सबको देंगे. Right? If the plan is customized for you, okay? हर कोई बोलता है customized है, personalized होगा. But there is a difference. Some personalized plans are just with minor tweaks. And some personalized plans are where it will take a lot of your information first and then the plan is devised. That's how I do. Okay. So when I have students who are preparing for FITGI, JEE, वो भी है मेरे पास. मैंने 8 year old 9 year old की भी काउंसलिंग करी है. So we know the professional will understand that what the routine is. Every individual is different. Okay. So basically when you go to find out a nutrition coach or nutritionist, you also have to ask questions initially rather than कि आप plan ले लो और फिर बाद में आप you're feeling bad that I'm not able to follow. You first ask questions because it's your body. So first you have to know whether it will be customized according to your schedule, which involves these timings, or you have to be clear that I can eat only 3 to 4 times in a day. Okay, I can take major meals और जो बीच के mini meals हैं वो I can just manage with the fruit, which is completely fine. अगर आपके mid meal सिर्फ fruits हैं और आप 3 major meals ले रहे हो, you can actually be fine and आपका health needs requirement, nutrition requirement पूरी, आपको every 2 hours खाने की जरूरत नहीं है, हर घंटे खाने की जरूरत नहीं है, it's not required. But you have to first discuss with the coach. Okay, make the plan. Once the plan comes, if you have any query, कुछ modification चाहिए, आपके पास वो bandwidth होना चाहिए, flexibility होनी चाहिए. Unless and until you are comfortable with a program, वो आप follow ही नहीं कर पाओगे लंबे time तक. So it's always important to have that preliminary discussion in detail. And before enrolling for the program, you have to be convinced and comfortable with the ideology of the coach as well. हर किसी के प्रैक्टिस करने का तरीका होता है. सो आपको पहले ये डिस्कस करके यू हैव टू सी कि मेरा इससे द चैनलाइजेशन इज फाइन, वेदर वी आर सिंकिंग इन विद द माइंडसेट्स एंड वेदर दिस विल वर्क फॉर मी और नॉट. यू कैन ऑलवेज आस्क एन आइडिया ऑफ अ सैम्पल प्लान वर्बली. कुछ बना के नहीं देना है उनको, बट आप पूछ सकते हो ये कैसे प्लान, हाउ विल इट लुक लाइक अ डाइट चार्ट. सो नोबडी विल डिनाई यू लाइक अ फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान कि अच्छा ऐसे ऐसे बनाएंगे. जैसे मैं बोलती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट होगा, उसमें पराठा भी हो सकता है, उपमा भी हो सकती है, दलिया भी हो सकता है, पोहा भी हो सकता है, साउथ इंडियन किसी को पसंद है वो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैनेजेबिलिटी ऑल्सो. इट कैन बी एज इजी एज प्लेन ग्रेनोला विद मिल्क, एज इजी. सो और वैरायटी कम चाहिए तो वो भी बोलो, तो ठीक है आप दो एक हफ्ते का प्लान होता है, आप 2 ऑप्शंस रखो ब्रेकफास्ट में, इट्स ओके.
So some efforts has to be from the client side and some efforts has to be from the coach side. It is a daily thing. ये ऐसा नहीं हो सकता एक बार प्लान दिया और आपके पास कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है टू communicate or to ask questions or to, you know, basically discuss things. There has to be a daily accessibility. Then only it can work. Okay. Actually, I Okay, remember so find the right coach. showed me that the nutritionist wrote to her that you have to eat avocados and I think dragon fruit. And when she went to the market to buy that dragon fruit, she was like, "Oh my God, this is so much costly. How will I 50 have it rupees. every Yeah, day?" तो मैंने बोला yeah, कि अरे मम्मी आप बता देते न्यूट्रिशनिस्ट को कि ये वाली चीज़ नहीं सूट कर रही है वो या जो yeah, कंस्ट्रेंट्स थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने मुझे डाइट चार्ट दे दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा शुड आई फॉलो इट और नॉट, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ yeah. है इसकी। तो It is very normal in today's time to make fancy stuff. फैंसी स्टफ बना देते हैं कुछ डिफरेंट के लिए, कि कुछ डिफरेंट हो। अदरवाइज जैसे मैं जब प्लान बनाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि इतना खाना खा के कैसे हो जाएगा वेट कम। सो हम्म इट्स नॉट इतना खाना, इट्स सही खाना। एंड जब हम किसी से पूरा उनका क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, वी आस्क देम कि आपके घर में नॉर्मली क्या बनता है। सो आई हैव एन आइडिया ऑलरेडी कि दिस ऑल इज मेड इन द हाउस होल्ड एंड दिस विल बी फीजिबल फॉर द पर्सन, कि उनके लिए आसान होना चाहिए टू फॉलो अ प्लान, नॉट डिफिकल्ट। सो मे बी द वो आपका सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं हुआ न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। अदरवाइज ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जरूरी नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं, दे डेलिबरेटली आस्क टू इंक्लूड एवोकाडो, दे लाइक इट, सो दैट्स completely fine. But some people don't like it, and it's completely fine to not have it and still get benefits of a good diet. ओके। Did you lose me in between? नो 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 नो, वो थोड़ा सा लाइक Oh, हुआ था बट दैट कैन बी एडिटेड oh, सो। ओके, okay. तो आई वांट टू आस्क अबाउट दैट आजकल बहुत ज़्यादा ब्लैक वाटर और ट्रेंडिंग डाइट्स चली हुई है, कीटो एंड ऑल, एंड एवरीबडी इज़ लाइक आफ्टर इट कि हम चीट डाइट करेंगे, कीटो करेंगे, ब्लैक वाटर पियेंगे। सो क्या इज़ इट इम्पोर्टेंट कि आपको वही फॉलो करना है जो ट्रेंड में है, एंड क्या बेनिफिट्स हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ ना कुछ रिसर्च जो है वो बहुत प्रिलिमिनरी बेसिस पे होता है, एंड some things are just for the hype. Maybe a new brand is launched and they would want to sell these things, so they will give it to celebrities and वो trend में आ जाएगा और फिर everybody will like to buy it. Like we see ads, marketing होता है, and basically young generation target होता है that it's cool to carry such a thing. ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल वाटर, गर्म पानी इज completely fine. आप उसके साथ चल सकते हो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ that you have to look at the total, day's diet, day on day basis with consistency. एक बारी दो बारी कुछ स्पेशलाइज्ड चीज खा के या महीने में एक एवोकाडो खा के आपको ऐसा नहीं है कि उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे इनसाइड आउट। ऐसे ही जब डायट्स आते हैं तो ये किसी एक दो या एक ग्रुप पे कुछ काम किया होता है उन्होंने। प्राइमरली ये वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं, तो एशियंस पे तो ऐसा कुछ उसका हमने यूज भी नहीं देखा है अनलेस एंड अनटिल हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। बट प्रैक्टिकल है कि नहीं लॉन्ग टर्म में? ऑलवेज बिल्ड हैबिट्स और फॉलो समथिंग दैट यू कैन सी योर सेल्फ फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years एटलीस्ट। तो अगर आप फॉलो कर सकते हो तो उसको स्टार्ट करो, अदरवाइज मत करो। देर आर हेल्दी वेज, इजियर वेज टू डू इट, एंड लाइक वी से द ओल्ड फैशन वे। हमारी बॉडीज देखो जेनेटिकली म्यूटेट नहीं हुई है, फैट लॉस का वही तरीका है। न्यू न्यू रिसर्चेस आती रहेंगी, बट टिल इट बिकम्स अ वेरी कॉन्क्रीट मैटर टू रियली टेक इन टू अकाउंट, तब तक कोई जरूरत है नहीं ऐसे। यू नीड कार्ब्स, यू नीड प्रोटीन, यू नीड फैट्स, आपको तीनों मैक्रोज चाहिए, आपको वेजिटेबल्स चाहिए, फाइबर चाहिए। बट आई थिंक बीइंग इंडियंस, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम एग्रीकल्चर लैंड में रहते हैं और आपको ये सब बहुत इजीली आप ले सकते हो। बैलेंस थोड़ा सा आजकल ऑफ हो गया है। लोग जैसे आपने उपमा और चाय पी के आप चले गए कॉलेज, या फिर आपने सिर्फ चाय और टोस्ट ले लिया। आदत होती है इस टाइम तक चाय
शुरू हो जाती है, या मे बी पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद ब्लैक कॉफी ऑल्सो। सो हाँ। उसमें क्या है, कुछ प्रोटीन नहीं जाता है, तो बैलेंस का हमें ध्यान रखना है। पहले मील्स को बैलेंस करो, स्लीप अपनी ठीक करो, बिकॉज आप कुछ भी ले लो पूरे दिन में, अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, कुछ भी यूज नहीं होगा ठीक से, रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी। तो हम्म। आप चाहे 2 प्रोटीन की स्कूप ले लो, 10 टैबलेट्स ले लो, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग राइट, it हम्म। won't be put to 100% used by the body, because the body has to use it at the end of the day. आप उसी के लिए हम्म। डाल रहे हो मुंह में उसको। So basically trends and everything, don't fall for it. Always have a discussion with a professional, understand what impact it can give or have on your body, and then make a wise decision. Because sometimes हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है to really go back and rectify a mistake done to the body. Yeah. इसलिए yeah. Okay, so my last question for all those people who are gym freaks and they go after protein shakes and eggs and chicken, and this is because Yeah. he जो friend है ना, he's also on a gym diet and he's all about कि मुझे तो ये eggs ही खाने हैं, मुझे protein shake चाहिए, I can't have this and this। तो like जो लोग मैंने देखा जो gym follow करते हैं, till the time they're having this diet, till the time they're going to gym, तब तक सब कुछ ठीक है। द मोमेंट दे स्टॉप द जिम और वो यही डाइट कंटिन्यू करते हैं, इट इज़ हैविंग अ बैड इम्प्लीकेशन ऑन देम। सो ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए होता है बिकॉज आप जब जिम में वर्कआउट कर रहे हो, तब आप एक कैलोरी बर्न आउट, एक कैलोरी आउटपुट निकल रहा है आपका। बट जब आप वर्कआउट बंद कर देते हो, चाहे आप जिम में कर रहे हो, चाहे आप वॉक्स कर रहे हो, कोई भी वर्कआउट आप बंद कर देते हो, और जो आप उस टाइम पे जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे थे खाने की फॉर्म में, वो आपकी सेम रहती हैं, बट आउटपुट बॉडी से कम हो जाता है ये चीज रोकने से। तो नेट क्या होगा? नेट होगा गेन। सो वो होता है पहली बात। तो दूसरा, जब आप इतनी हैवी क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हो, ओके, यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑल्सो, यू टेकिंग टैबलेट्स ऑल्सो, यू टेकिंग टू मच ऑफ एग्स एंड चिकन ऑल्सो, विथ योर कोर्स ऑफ टाइम अगर आप उसे राइट वाटर इनटेक, राइट स्लीप, राइट वर्कआउट से नहीं कॉम्पनसेट करते, बिकॉज आपके मसल को उसे यूज भी करना है। आप हम्म। इतना प्रोटीन तो दे रहे हो, बट वो क्या, किस काम के लिए यूज कर रही है बॉडी? प्राइमरी सोर्स बॉडी का कार्बोहाइड्रेट ही है एनर्जी यूज करने के लिए। हम्म। प्रोटीन तो वो यूज करती है मसल की क्वालिटी के लिए, उसकी टोनिसिटी के लिए, वेयर एंड टेयर के लिए, रिपेयर वर्क के लिए। बट अगर आप काउच पोटेटो बन गए हो, आप बिल्कुल बैठ गए हो, मे बी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और पूरा आपका जिम वर्कआउट 1 महीने के लिए बंद है, बट क्योंकि आपकी उस टाइम पे एपेटाइट उतनी हो गई थी, तो हम्म। आपने डाइट बंद नहीं की, और बैठ के हमें ज्यादा भूख लगती है, मगर हम्म। पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं सारा दिन, आपने इंटेक उतना ही कर दिया। एग्स नहीं, सिर्फ एग वाइट्स नहीं, आप उसके साथ पराठा भी खा रहे हो, टोस्ट भी खा रहे हो, चिकन नहीं, चिकन के साथ आप रोटी सब्जी भी खा लिया आपने, एक आइसक्रीम भी खा ली। तो ये फिर धीरे धीरे इट स्टार्ट्स गेनिंग, इट इज नॉट गोना बी यूज बाय द बॉडी फॉर एनी मसल एक्टिविटी, बिकॉज वो आप एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हो। तो हम्म। फिर उसमें आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है, हैवीनेस भी हो सकता है, स्टमक अपसेट भी हो सकता है, एंड ऑब्वियसली वेट गेन तो हो ही सकता है कि मसल आपका ठीक से नहीं रिटेन हुआ। आपको रिटेन कर, वंस यू ज्वाइन अ जिम, यू हैव स्टार्टेड बिल्डिंग मसल देयर, यू हैव टू ऑल्सो रिटेन इट। हर चीज की मेंटेनेंस होती है। आपने वेट लूज किया है, उसकी मेंटेनेंस भी होगी। अगर हम्म। आपने रोटी छोड़ के वेट लूज किया है, आप रोटी दोबारा स्टार्ट करके यू कांट एक्सपेक्ट कि वेट लॉस ही रहेगा, हम्म। बिकॉज आपका मेथड ही वही था वेट रिड्यूस करने का। बॉडी ने इसलिए किया कि आपने एकदम से अपनी कैलोरीज बहुत ज्यादा कम कर दी, या कार्ब्स आपने बिल्कुल जीरो कर दिए, विच इज अगेन नॉट आइडियल। सो जब आप जिम स्टार्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू हॉग ऑन प्रोटीन। आपको पाइल्स एंड पाइल्स में प्रोटीन नहीं करना है। पहले आप नेचुरल डाइट को बैलेंस करो, मैनेज करो, फिर उसे धीरे धीरे लेवल अप करो, जो जैसी जरूरत है, जितना आप रेगुलर कंसिस्टेंट हो पाते हो। मैंने मैराथन रनर्स की भी काउंसलिंग करी है, एथलीट्स की भी करी है। साइकिल मैराथन में जाने वाले की हमने सिर्फ नेचुरल वेज, और वो वेजिटेरियन थे, नेचुरल वेजिटेरियन प्रोटीन से करा, ही कंप्लीटेड इट कंप्लीटली फाइन। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यू नो प्रोटीन पाउडर्स ही खाने हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। वो एक जरिया जरूर है ऑफ टॉपिंग अप योर प्रोटीन, अगर आपको घर में नहीं उतनी एफर्ट और अवेलेबिलिटी है कि आप नेचुरल डाइट, बट इनिशियली हमेशा नेचुरल डाइट से ही शुरू करो, बिकॉज हम नॉर्मली ही कम खा रहे होते हैं।
इंडियंस नॉर्मली प्रोटीन कम ही खा रहे होते हैं, तो पहले आप उसको बैलेंस पे लाओ, सही अमाउंट पे लाओ। फिर अगर आप देख रहे हो कि हाँ मैं एक्टिविटी, क्योंकि इनिशियली तो जिम में आप वैसे भी एकदम हार्डकोर नहीं शुरू हो जाते हो। यू हम्म। स्टार्ट द जिम, यू फर्स्ट बिल्ड योर स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ। हम्म। धीरे धीरे आप वेट बिल्डअप करोगे, तो उसी स्पीड से आप प्रोटीन भी बिल्डअप कर सकते हो। इट्स नॉट कि आप BCAA भी लो, क्रिएटिनिन भी लो, आर्जिनिन भी लो, प्रोटीन पाउडर्स भी लो, ब्लैक कॉफी भी शुरू कर दो, ऐसी कोई नीड नहीं होती है। तभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट इन डिटेल। चाहे आप एक ही कंसल्टेशन लो, चाहे आप सिर्फ डिस्कशन के लिए चले जाओ, अंडरस्टैंड दैट आपको कौन से ट्रैक पे चलना है, अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल आई नीड टू फोकस ऑन। अगर चलो स्टूडेंट्स हैं, नहीं है उतना स्पेंडिंग लिमिट भी कि हम एक कंप्लीट प्रोग्राम 3 मंथ्स या मंथली बेसिस पे चल सकते हैं, तो आप एक सिंगल कंसल्टेशन लेके यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ओके। एंड एक बहुत ही हॉट टॉपिक क्वेश्चन, क्योंकि सब लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइक रिलीजन एंड भगवत गीता एंड ऑल पढ़ रहे हैं, वैष्णव पूरा जो कल्चर है, तो उसमें कहा जाता है इफ़ यू ईट चिकन, इफ़ यू ईट ऑल दिस लाइक जो मांसाहारी खाना होता है, तो उससे आप एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन जाते हो। ये आपके कर्मा के लिए तो अच्छा है ही, प्लस आप एक शाकाहारी हो, बिकॉज आपके जो टीथ वगैरह वो बिल्कुल आई थिंक काऊ से वो रिलेट करते हैं, कि जितने हर्बीवोर्स हैं उससे रिलेट होती है हमारी बॉडी एंड हमारे टीथ। तो हमें शाकाहारी खाना चाहिए, हमें वीगन हो जाना चाहिए, एंड हमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए और एनिमल को नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये सही है? देखो, ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी है सबकी, बट ऐसा नहीं है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, या आप अगर एक ब्लड लाइन देखो, या जब मैन ने स्टार्ट किया था, तो हंटिंग भी करते थे वो। ऐसा नहीं है कि खाने के लिए वो सिर्फ फार्मिंग करते थे। हम्म। पहले वो हंटिंग से ही शुरू हुए, फिर फायर उन्होंने ऑब्वियसली स्टार्ट दे डिस्कवर्ड, एंड देन फार्मिंग हुई, फिर आगे आगे हुए। तो ऐसा नहीं है, जैसे ब्लड ग्रुप डाइट एक बार चली थी, तो ओ ग्रुप वालों का उन्होंने बोला था कि मैक्सिमम जो ब्लड लाइन ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप की है, वो कार्निवोर्स ही थे। दे वर मीट ईटर्स बेसिकली। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आइडियोलॉजी है। और फिर जब हम कान्हा के बारे में पढ़ते हैं, या उनकी फिलोसफीज देखते हैं, तो वो तो गाय को इतना प्यार करते थे, और दूध पीते थे, और मक्खन खाते थे, मलाई खाते थे। वो उनको गौ माता बड़े प्यार से देती थी, वही हमने देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्रूएल्टी इज बैड, एनिमल्स की क्रूएल्टी वो उन से की जाए, या उनको इंजेक्शन दिए जाएं टू मीट द डिमांड, दैट इज रॉन्ग। उसके लिए ऑब्वियसली एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सब आवाज उठाते हैं। बट मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब बीमार हैं, क्योंकि वो तो एवरी मील बेसिस पे नॉनवेज खाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एनीथिंग शुड नॉट बी आउट ऑफ बैलेंस। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नॉनवेज खा रहे हैं बट वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, वाटर इनटेक अच्छा नहीं रख रहे हैं, ग्रेन्स बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट फॉलो एक्सट्रीम्स। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। वो बैलेंस आपकी जो भी प्रेफरेंस हो, वेदर यू लाइक टू बी अ नॉन वेजिटेरियन और अ वेजिटेरियन और एन एगिटेरियन और अ वीगन, और somebody who would like to leave gluten, you should know what is the right balance। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हम बचपन से ग्रेन्स भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ खराब हुई है। ये हमारे कल्चर में भी है, ऐसा नहीं है। दूध, दही, पनीर हमारे कल्चर में ही है। बट यू हैव टू फाइंड द राइट सोर्स, have it in the right balance. So awareness is the key. Awareness about what will work for your body at the current health status that your body has। आपका हेल्थ स्टेटस चेंज होता रह सकता है। हो सकता है 1 साल बाद आपको कोई गट कंसर्न है, या आपका हेमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, तो आपका गोल कुछ और होगा। उस टाइम पे आपका फोकस होगा, ओके हेमोग्लोबिन लेवल मेरे को ठीक करना है, या मेरी बॉडी में प्रोटीन कम हो रहा है, मसल की स्ट्रेंथ कम है, तो मुझे इस पे फोकस करना है। बट एवरी टाइम इट विल ऑल कम टू द वर्ड बैलेंस। जैसे हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ के लिए बैलेंस चाहिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बैलेंस चाहिए, आपके मसल, फैट, वाटर, बॉडी में उस लेवल का बैलेंस चाहिए, राइट। इमोशनल हेल्थ के लिए आपको बैलेंस चाहिए ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। सो थोड़ा टाइम डेली बेसिस पे स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ, स्पेंड इट ऑन थिंकिंग एंड प्री प्लानिंग अ बिट। मॉम्स के साथ हेल्प करो, प्री प्लानिंग द वीक्स मेन्यू, what you would like to carry to college,
कैंटीन में क्या ऑप्शंस हैं जो हेल्दी हैं, जो आप अगर एसओएस बेसिस पे खा सको, कभी नहीं घर से मैनेज होता है, क्या गैप्स देने हैं मेरे को लंबे गैप्स हैं तो क्या फ्रूट में इजीली कैरी कर सकती हूँ, मैं नींबू पानी शिकंजी कैरी कर सकती हूँ इजीली फ्रॉम हाउस, यू नो पीनट्स मैं कैरी कर सकती हूँ, मखाने कैरी कर सकती हूँ। ये सब बहुत इजी है चीजें, जो निक नैक्स में आपके आएंगे। यू डोंट हैव टू झटपट गो एंड ग्रैब अ पैकेट ऑफ चिप्स और चॉकलेट टू फिल यू अप, कि मैं भूल गई हूँ कुछ लाना और मुझे भूख लगी है एंड माई क्लास इज गोना बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो क्या करोगे आप? तो अगर आपके पास एक छोटा सा डब्बा ऑफ मखाना है या पीनट्स हैं, एक एप्पल है, तो वो फिल कर देगा आपको। या Okay. So, any three tips for our college students कि उन्हें कैसी डाइट लाइक फॉलो करनी चाहिए, या जस्ट जनरल एडवाइस जो आप देना चाहोगे? सो 3 टिप्स जो आप जहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो। सबसे पहला जो मैं जरूर बोलती हूँ, दैट योर बॉडी हैज मसल्स, हैज जॉइंट्स, हम्म, उनका फंक्शन है मूव करना। सो हम्म, मूवमेंट पे फोकस करो, रिस्ट्रिक्ट मत करो मूवमेंट। ऑब्वियसली हमारी लाइफ एक हसल बसल है और हम मोस्टली सिडेंट्री हो गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द कन्वीनियंस दैट वी हैव, हम्म, बट मूव योर बॉडी, इट इज इम्पोर्टेंट। स्टेप्स, हाँ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, बट वो आप कैसे चल रहे हो, तेज चल रहे हो, आप खाने के बाद चल रहे हो तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कर रहे हो तो वो आपके मेटाबॉलिज्म फैट लॉस में हेल्प करेगा। सो मूव योर बॉडी, टेक केयर ऑफ दैट ऑन डेली बेसिस। सेकेंड, 2 कटोरी सब्जी किसी भी फॉर्म में पूरे दिन में होनी ही चाहिए। वेजिटेबल्स पे फोकस करो, सिर्फ रोटी दाल खा ली या रोटी सब्जी खा ली, दैट इज फाइन, बट फर्स्ट इज कि आप वेजिटेबल्स पे फोकस करो। अब उपमा खा ली, उसमें वेजिटेबल ज्यादा नहीं डाली, या पराठा और दही खा लिया, उसमें आपने वेजिटेबल भी डाला, आप पराठे में स्टफ कर रहे हो, आप सैलेड की फॉर्म में ले रहे हो, स्टर फ्राई ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, हम्म, फॉर्म कोई भी हो सकती है, हम्म, बट हैव 2 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टेक केयर हो जाते हैं, गट हेल्थ आपकी टेक केयर हो जाती है। थर्ड इज वाटर और स्लीप, हम्म, इनको हमें निग्लेक्ट नहीं करना है, ये थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं हम्म, नॉर्मली ये 2 चीजें, बट ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। तो हम्म, वाटर इनटेक का टेक केयर करो, 2 बॉटल, एक टारगेट लगाओ, 2-2.5 लीटर्स एटलीस्ट। ओके, बहुत टाइम ये आपकी क्रेविंग कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा इफ योर वाटर इनटेक इज फाइन। स्लीप, वन थिंग दैट विल, ये आप ऐसे ले लो कि ये आपका जो भी आप हार्डवर्क करते हो ना बॉडी पे, ये उसका रिजल्ट देने का लास्ट स्टेप है, कि एवरी नाइट द बॉडी इज गोना यूज everything that you're giving to the body on daily basis. Set the clock again for the next day for you to be एनर्जी, आपकी स्किन हेयर अगर आपको अच्छी चाहिए तो स्लीप पे फोकस करो पहले। ओके, तो ये बेसिक्स हैं। मूव योर बॉडी मोर, इंक्लूड वेजिटेबल्स, ध्यान दो उस पे, एंड स्लीप एंड वाटर, ये कुछ निग्लेक्टेड एरियाज है तो इस पे जरूर फोकस करो। या एंड ऑन डेली बेसिस जस्ट टेक आउट 5 to 10 मिनट्स और प्री प्लान करो थोड़ा, अगर आप हेल्थ पे करना चाहते हो तो सही, 1 स्टेप एट अ टाइम। Thank you That's so what it much, is. ma'am. Don't make it a hawa. Yeah, yeah. Never fear uh, when it comes to food. हम्म, Enjoyment है, but पूरी enjoyment की picture नहीं है, वो part है enjoyment का। तो बस that is there. Don't follow extremes. Follow balance. Yeah, that will be my tip of the podcast. ओके, सो आई होप कि व्यूअर्स इसे फॉलो ज़रूर करेंगे। मैं खुद भी बहुत फॉलो करूँगी, ऑल्दो मेरी स्लीप पैटर्न तो लाइक मैं 8 आवर्स अपनी स्लीप ज़रूर लेती हूँ, बट हाँ बाकी चीज़ें आई टेंड टू नेग्लेक्ट समटाइम्स, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हूँ एंड घर का टाइम नहीं मिलता, बट येस आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये भी मेरा एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। सो थैंक यू सो मच Absolutely. मैम फॉर ऑल योर Most, इंसाइटफुल most टिप, welcome. एंड आपने बहुत ज़्यादा लाइक वाइडन कर दिया हमारे माइंड को, Mm. एंड रियली हेल्प्ड अस थिंक अबाउट न्यूट्रिशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच फॉर मैम joining us for today. I am glad. I am glad. You take care, and I hope that these tips will help you, and you will work towards it and keep it, close to your mind, heart, and will have benefits from it as well. Okay.